जय जगन्नाथ पिलाने मुझे आपंकर आशुतोष सार मु पढ़ाऊँ तुम मानक नवम श्रेणी जीव विज्ञान और आम पढ़ुचे प्रथम चैप्टर जैव विविधता। पिलाने सब भल अछ तो पाठ पढ़ाई रेडी तो सब कमेंट सेक्शन में जनाओ। देखा आम चारोटी पार्ट रे आमर प्राणी विभाग जो श्रेणी विभागकरण होता चारोटी पार्ट रे सेटा कंप्लीट होता 4 नंबर पार्ट रे कंप्लीट होता। बर्तमान आम वीडियो 5 नंबर पार्ट रे आरंभ करवा से कोड डाटा। कोड डाटा आम कोड डाटा विषय पढ़ते प्रीवियस क्लास रे। कोड डाटा रे आमर जो क्लासिफिकेशन रही कोड डाटा को 3टी उपपर्व रे डिवाइड होती। कौन से 3टी उपपर्व? फर्स्ट है यूरोकोडाटा, द्वितीय है सेफालोकोडाटा, तृतीय है वर्टिब्राटा। कौन तृतीय है माने तो फर्स्ट रहा यूरोकोडाटा, सेकेंड रहा सेफालोकोडाटा, बट थर्ड रहा कौन वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा। जब पिलाने बर्तमान आम पढ़ा यूरोकोडाटा विषय। ये 3टी आमर उपपर्व कोडाटार 3टी उपपर्व पर्व उपपर्व विषय आम सब प्रीवियस क्लास रे पढ़ते। ये 3टी हूँ कौन उपपर्व यूरोकोडाटा। यही मानकर जो शरीर रही क्यों मानकर यूरोकोडाटा जो मैंने जाऊँगी कि से शरीर में एक ट्यूनिक नामर शक्त आवरण रही है। कौन रही है? ट्यूनिक। ट्यूनिक नामक एक आवरण रही है। ट्यूनिक नामक कौन रही है? शक्त आवरण रही है। एमानक माने देखो ये आवरणटा जोड़ा रही कि ट्यूनिक नामक आवरण से पूरा शरीर को कवर करते माने आवृत रही है कई प्रकार आवृत भाव आवृत भाव नटगढ़। देखो यूरोकोडाटा रे नटगढ़ आमर जो डोर्साल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड माने जो नलाकृति पृष्ठ स्नायु रज्जु कौन नोटोकॉर्ड। कृति नलाकृति पृष्ठ पृष्ठ स्नायु रज्जु क्यों देखा जाए सुख बा लार्भा अवस्था। सुख बा लार्भा अवस्था देखा जाए है कि तापर आमर आ गोटे पॉइंट आम पॉइंट वाइज पढ़ा कि माने जो आमर कोर्स कंप्लीट हम न हम से विषय टेंशन ना आम गोटे गोटे पॉइंट सिंपल भाव में बुझा। देखो गोटे पॉइंट है नटकॉर्ड और नलाकृति पृष्ठ स्नायु रज्जु कौन है? ट्यूबुलर आमर जो ट्यूबुलर डोर्साल नर्व कॉर्ड सुख बा लार्भा अवस्था देखा जाए। ग्रसन रे गाली छिद्र थाए। ग्रसन रे गाली छिद्र बोले पैरेंजियल गिल स्लिट्स। ग्रसन रे छिद्र थाए गाली छिद्र थाए। ग्रसन रे गाली छिद्र अर्थ पैरेंजियल गिल स्लिट्स है इंग्लिश रे हमर पैरेंजियल गिल स्लिट्स। ग्रसन रे गाली छिद्र थी माने जो ग्रसनी तार रही यूरोकोडाटा मानकर गाली छिद्र माने गिल स्लिट्स जो पैरेंजियल गिल स्लिट्स थी
ଓ ଏମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଥାଏ। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ ହେଲା କି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ମାନେ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଅତି ସରଳ ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି କି ଅତି ସରଳ ଏମାନଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅତି ସରଳ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ତ ୟୁରୋକୋଡାଟାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ହେଡମାନିଆ। କ'ଣ ହେଡମାନିଆ ଦେଖ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ଟ୍ୟୁନିକ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ରହିଥାଏ ମାନେ ଆବୃତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଭର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କଭରିଂ ଭାବରେ ରହିଥିବ କୋଉଥିରେ ୟୁରୋକୋଡାଟାରେ। ନଟକୋଡ ଓ ନଳାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ନଳାକୃତି ବା ଯୋଉ ନଟକୋଡ ଓ ନଳାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଗ୍ରସନରେ ଗାଲି ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ। କୋଉଠି ରହିଥାଏ ଗ୍ରସନରେ ଗାଲି ଛିଦ୍ର ଓ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅତି ସରଳ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅତି ସରଳ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ହେଡମାନିଆ। ହେଡମାନିଆ ଆମ ବହିଗତ ଆମର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହେଡମାନିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଫାଲୋକୋଡାଟା। କ'ଣ ଦେଖିବା ସେଫାଲୋକୋଡାଟା ବିଷୟରେ। ୟୁରୋକୋଡାଟା ବିଷୟରେ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଫାଲୋକୋଡାଟା। ସେଫାଲୋକୋଡାଟା ସେଫାଲୋକୋଡାଟା କ'ଣ ଏହା ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଟୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଛୋଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏହା ଛୋଟ ଆକାର ପ୍ରାୟ 5 ଟୁ 7 cm ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାର ପ୍ରାୟ 5 ଟୁ 7 cm। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ମାନେ ଯୋଉ ଏହାର ମୁଣ୍ଡଟି ମାଛ ଭଳି ଏହାର ମୁଣ୍ଡଟି ମାଛ ଭଳି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏହାର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟି ମାଛ ଭଳି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏହା ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ମାନେ ଦେଖ ଏହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ ବା ଠିକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। କୋଡାଟାରେ ଥିବା 3ଟି ଯାକ ଯାହା କୋଡାଟାରେ 3ଟି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ନଟକୋଡ ଓ ଆମର ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ଓ ତାପରେ ନଳାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ନାୟୁରଜ୍ଜୁ ପାରେଞ୍ଜିଆଲ ଆମର ଯୋଉ ସରି ଟ୍ୟୁବୁଲାର ଆମର ଯୋଉ ଡୋର୍ସାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲାର ନର୍ଭ କୋଡ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ଓ ଗ୍ରସନରେ ଗାଲି ଛିଦ୍ର ପାରେଞ୍ଜିଆଲ ଗିଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ସ। ଏହା ଆମର ଯୋଉ କୋଡାଟାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ସେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଥିବ। କୋଡାଟାର ଏଥିରେ କୋଡାଟାର 3ଟି ଗୁଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ନଟକୋଡ ଶରୀରର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ନଟକୋଡ କୋଉଠି ଥିବ
माने शरीर आरंभ माने एटा मनर यार मनर दो हमर जो तार एग्जांपल देछि गोटे से टाइप रो डायग्राम गोटे टाइप करिया ए टाइप रो माने दो हमारे जो नटकड़ रही कि नटकड़ शरीर आरंभ रू माने ए पार्ट रु ए पार्ट पर्यंत पूरा फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत नटकड़टा प्रेजेंट थी शरीर आरंभ रू शेष पर्यंत नटकड़टा प्रेजेंट थी ओ यार माने दो नटकड़टा कोडो एडा तार शरीर आरंभ होला एडा शरीर एंड होला ए पार्ट रु ए पार्ट पर्यंत पूरा नटकड़टा थी तापरे यार परिपाक नली माने जो खाद्य ग्रहण कर जो नली रही डाइजेस्टिव ट्रैक जो डाइजेस्टिव ट्यूब रही से गुड़िक अति सरल और एम देहरे रेचन तंत्र थाए रेचन तंत्र कौन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑर्गन बा रेचन तंत्र रेचन तंत्र थाए माने दो फर्स्ट जो आम यूरोकोडाटा विषय पढ़ले से रेचन तंत्र अच्छी बोली किसी मेंशन नथिला बट एथिरे हमर जो सेफालोकोडाटा अछि सेतिरे रेचन तंत्र अच्छी बोली गोटे स्पेसिफिक पॉइंट देछि या गोटे होला हमर पॉइंट एमे जो डायग्राम गले यार उदाहरण ए आउछि गोटे एमपीपीएस उदाहरण होला एमपीपीएस है बर्तमान आम एटा बुझला पिला माने समस्ते या देखिए बहुत छोट आकार प्राय 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर और कडाटार 3टी गुण स्पष्ट भाव जना पड़ो और आमर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन तार रेचन तंत्र गोटे स्पेशल थी और यार परिपाक नली बा डाइजेस्टिव ट्यूब ट्रैक से गुड़िक अति सरल और एम कौन जे जो नटकड़टा माने जो नटकड़ रही शरीर आरंभ रू शरीर शेष पर्यंत थी यार प्रमुख उदाहरण है एमपीपीएस तो वर्तमान आम देखा भर्टिब्राटा कौन देखिए भर्टिब्राटा विषय पिला माने पूरा एडा हमर जो पूरा ए जो आम जो 3टी पार्ट विषय पढ़ला परे गोटे चार्ट गोटे डायग्राम चार्ट विषय गोटे बनेगी तुम सरल भाव में बुझे देवी माने तुम बुझे इजी हम माने जो प्राणी जगत विषय गोटे सिंपल डायग्राम माने जो तार ग्राफ चार्ट गोटे बनेदेले तुम बुझे इजी हम से टाइप प्रोवाइड कर देवी वर्तमान आम पढ़ा भर्टिब्राटा भर्टिब्राटा हूँ एक एमतिक ये जो गोटे उपपर्व से समस्त मेरुदंडी प्राणी अंतर्भुक्त प्रथम पॉइंट है समस्त मेरुदंडी प्राणी अंतर्भुक्त तापर आम आ देखिया देख ये जो आम नर्व कोड आम जो नट कोड था जो आम नट कोड था पृष्ठरज्जु ओडिया पृष्ठरज्जु नटकोड ये जो आम नटकोड था से पूर्णांग अवस्था आम मेरुदंड परिणत होती भर्टिब्राटा यहाँ गोटे मेन पॉइंट है समस्त मेरुदंडी प्राणी यही भर्टिब्राटा उपपर्व अंतर्भुक्त द्वितीय पॉइंट है कौन आमर जो पृष्ठरज्जु माने नटकोड नटकोडटा आमर पूर्णांग अवस्था मेरुदंड परिणत होता है क्यों उपपर्व भर्टिब्राटा उपपर्व यहाँ गोटे मोस्ट गोटे 1 मार्क टाइप क्वेश्चन नटकोड पूर्णांग अवस्था परिणत हुई आमर जो नटकोडटा पूर्णांग भाव में मेरुदंड परिणत होता है यह क्यों उपपर्व परिणत होता है यार उदाहरण माने जो आंसर हम भर्टिब्राटा तो नटकोड पूर्णांग अवस्था अवस्था
नटकोड पूर्णांग अवस्था मेरुदंड रे परिणत होता है। आम शरीर में जो आम मेरुदंड सहित मेरुदंड आम जो नटकोटा मेरुदंड रे परिणत है आम मेरुदंड सहित अस्थि आमर जो अस्थि अच्छी शरीर में विभिन्न अस्थि और उपास्थि माने कार्टिलेज अस्थि अर्थ बोन उपास्थि अर्थ कार्टिलेज। अस्थि और उपास्थि उपास्थि जोड़ी हुए माने तो गोटे पूर्णांग शरीर गठन करने मेरुदंड सहित अस्थि उपास्थि आमर अंत जो अंत कंकाल अच्छी आमर जो स्केलेटन अंत कंकाल आमर जो कंकाल अच्छी देह से गुड़िक सब इंपोर्टेंट तो प्रथम मेरुदंड क्रिएट है नटकोड मेरुदंड सहित मिसिले कौन अस्थि और उपास्थि बोन और कार्टिलेज और अंत कंकाल बंद करो टे पाटिया लगे मेरुदंड सहित अस्थि और उपास्थि जोड़ी हुए और पुणी अंत कंकाल माने स्केलेटन अंत कंकाल रहे और आमर जो भर्टिब्राटा साइड आमर जो खपुरी आमर जो मुंडरे खपुरी अच्छी खपुरी को आमर जो मस्तिष्क रही मस्तिष्क को खपुरी गोटे शक्त आवरण द्वारा मान आवृत हो रही है सुरक्षित रही क्या को खपुरी रो एक आवरण सुरक्षित भाव रखिए रखी था पे भर्टिब्राटा विषय आम जो पढ़ले समस्त मेरुदंडी प्राणी यही प्राणी रे अंतर्भुक्त नटकोड पूर्णांग भाव में जब फुल डेभलप है पूर्णांग अवस्था जब परिणत हम से मेरुदंड रे परिणत हम मेरुदंड सहित अस्थि माने बोन उपास्थि अर्थ कार्टिलेज अंत कंकाल स्केलेटन मिसे और मस्तिष्क को खपुरी एक आवरण सुरक्षित भाव में रखे यह भर्टिब्राटा एति आमर मेन इंपोर्टेंट पॉइंट तापर आम देखा भर्टिब्राटा को आम देखा भर्टिब्राटा को पुणी 6 भाग में विभक्त कराई से 6 भाग कौन कौन आम देखा बर्तमान देख भर्टिब्राटा विषय समस्त भलसे बुझिले पिलाने आम प्रथम पढ़ले यूरोकोडाटा पढ़ले सेफालोकोडाटा पुणी पढ़ले भर्टिब्राटा तापर आम बर्तमान देखा भर्टिब्राटा को 6 भाग में विभक्त कराई सब पूरा क्लास एंड है माने गोटे चार्ट डायग्राम हिसाब से मु तुमको आमर व्हाट्सएप चैनल आमर ग्रुप अच्छी आ टेलीग्राम ग्रुप अच्छी से अपलोड कर कौन आमर जो गोटे डायग्राम माने पूरा डायग्राम डा तुम गोटे जानापी सिंपल हम माने देख गोटे मनोहर आम कोडाटार 3टा पर्व कोडाटा 3टा पर्व सेफालो यूरो भर्टिब्राटा भर्टिब्राटा 3टा मनोहर पार्ट 3टा पार्ट भर्टिब्राटा पुणी 6 भाग में विभक्त कराई ए टाइप रो डायग्राम आमर व्हाट्सएप चैनल और आमर टेलीग्राम ग्रुप रे तुमको दिखाई से आम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप सहित लिंक होगी रो तो पिला बर्तमान आम भर्टिब्राटार फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट कौन है साइक्लोस्टोमाटा पॉज करो सर साइक्लोस्टोमाटा को आदिम मेरुदंडी प्राणी कहुए आदिम अर्थ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कौन कहुए एमान को प्राणी बा इंग्राजी रे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स को आजे एमानकर शरीर दीर्घायित माने लॉन्ग माने दीर्घायित दीर्घायित अर्थ कौन लंबा थी सिंपल बुझिया दीर्घायित अर्थ कौन लंबा थी शरीर सेमानकर ओ मुख हनुविहीन हनुविहीन अर्थ कौन जलेस माने जो तार जो मुखर जो मोर आकार किसी नथियो है कि एमाने साधारणतः एमाने दीर्घायित ओ एमानक मुख हनुविहीन हनुविहीन अर्थ कौन जलेस माने एमान किसी मुह आकार नथियो है कि कौन मानकर साइक्लोस्टोमाटा मानकर जलेस है पिलाने बर्तमान आम एम साधारणतः परजीवी भाव में माने अन्य परजीवी अर्थ कौन अन्य उपरे से निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारती ना से खाद्य माने खाद्य ग्रहण करने अन्य उपर निर्भर करती से परजीवी कहुए माने से जीवन यापन करवा माने जो जो वे खाद्य ग्रहण कर अन्य उपर डिपेंड कर खाद्य ग्रहण कर वृक्ष कथा चिंता करवा से स्वभोजी बट आमर कथा आम चिंता करें आम हूँ परभोजी ए टाइप आम बुझा एम साधारणतः परभोजी एम प्रमुख उदाहरण है पेट्रोमाइजिन पेट्रोमाइसिन और मिक्सिन तो पुणे आउथरे आम बुझा एम आदिम मेरुदंडी प्राणी बा प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स कहुए एमाने दीर्घायित और एमानकर मुख हनुविहीन बा जलेस माने एमानकर मुख किसी आकार नथिवो है एमाने साधारणतः परभोजी माने अन्य उपरे खाद्य ग्रहण करने अन्य उपरे डिपेंड करती एमा उदाहरण है पेट्रोमाइसिन और मिक्सिन बर्तमान आम देखिए पाइसेस पाइसेस विषय Pisces द पाइसेस होची पाइसेस रो मुख्य उदाहरण कौन है माछ पाइसेस रो मुख्य उदाहरण होची माछ माछ यार प्रमुख उदाहरण माछ यार प्रमुख उदाहरण एम शरीर अस्थि बा
देख आम प्रथम पढ़ले माछ यार प्रमुख उदाहरण एम शरीर के पाइसेस मान शरीर अस्थि बा तरुणास्थि अस्थिर अर्थ है बोन तरुणास्थि अर्थ है कार्टिलेज है अस्थि और तरुणास्थि गठित शरीर एम शरीर शरीर एम शरीर अस्थि और तरुणास्थि गठित एम शरीर काति द्वारा आवृत माने आम साधारणतः जानते माछ मान शरीर क्या द्वारा आवृत पे कह कमेंट सेक्शन रे एमाने जो माछ मान शरीर सर्वदा काति द्वारा आवृत रही गोटे पॉइंट एमान शरीर काति द्वारा आवृत यही काति वृद्धि बल माने ग्रोथ रिंग वृद्धि बल थाए यार आकार भिन्न भिन्न होता है यही काति कौन थाए वृद्धि बल ब्रैकेट रे ग्रोथ रिंग ग्रोथ रिंग थाए एम आकार भिन्न भिन्न रही है देख एम जो पाचन नली डाइजेस्टिव ट्रैक रही से गुड़िकर शेष अवसारणी छिद्र अर्थ है कोकियल अपेरचर माने कोकियल अपेरचर गोटे छिद्र थी माने शेष अवसारणी छिद्र कौन है गुड़ी कह जाए अपसारणी छिद्र थाए मुखर हनु दांतयुक्त माने जो मुखड़ा दांतयुक्त थी माने जो मुखड़ा गोटे प्रकार आम पढ़ले जो आम साइक्लोस्टोमाटा मुखड़ा हनु विहीन माने जलेस से मुखर आकार किसी जना पड़ोनी बट आम जो पाइसेस पढ़ले मुखड़ा जो आम ज अच्छी दांतयुक्त माने दांत थी से और एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया संपादन करते मुख्य पॉइंट है एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया करती श्वासक्रिया करती माने गाली द्वारा श्वासक्रिया करती उदाहरण शंकुर माछ उदाहरण देखो माछ तो अनेक माछ से भितर गोटे निर्दिष्ट एग्जांपल बुक रे देछि कोन शंकुर माछ शंकुर माछ तापर आम देखिए बहरे आउ कौन कौन उदाहरण देछि टर्पेडो माछ मगर माछ हिप्पोकैम्पस आमर लोकल रे जो देखा रोही भाकुर मिरिकाली शेउल इलिशी खईंगा इत्यादि सब जाक पाइसेस आमर पाइसेस अंतर्भुक्त आमर मधुर जलर माछ कौन आमर मधुर जल देखा जाए रोही मेरिकाली खईंगा इत्यादि एति आम विषय तो पाइसेस विषय पढ़े पाइसेस माछर एक प्रमुख उदाहरण एम शरीर अस्थि और तरुणास्थि बोन और कार्टिलेज रे गठित एम शरीर काति द्वारा आवृत थाए एम शरीर केमती आवृत थाए काति द्वारा वृद्धि बल एम शरीर गोटे आम काति गोटे वृद्धि बल थाए से आकार भिन्न भिन्न रही है एम शरीर एक अवसारणी छिद्र रही है अवसारणी छिद्र शेष भाग में पाचन नली आम जो पाचन नली देछि शेष भाग में अवसारणी छिद्र रही है और एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया संपादन करथांती
एम प्रमुख उदाहरण है शंकुर माछ एम मधुर जल माने जो लुणी जल शंकुर माछ मधुर जल में रोही भाकुर मिलिकारी खईगा इत्यादि देख पे फर्स्ट आम पढ़ले साइक्लोस्टोमाटा विषय तापर आम पढ़ले पाइसेस विषय बर्तमान आम पढ़े आम्फिबिया विषय देख एमाने होचंदी माने एमाने जो एम्फिबियस श्रेणी जो प्राणी मान अछंती एमाने साधारणतः जल रे रही पारंती किबा स्थल रे रही पारंती एमाने कोन रहंती एमाने द फर्स्ट पॉइंट गोटे हला एमाने जल जल ओ स्थल स्थल उभय स्थान रे माने बसवास करि पारंती तेणु एमानकु उभयचर प्राणी कह जाय कोन कह जाय एमानकु उभयचर प्राणी माने जल स्थल रे बास करुथिबारु एमानंकु उभयचर चर प्राणी कह जाय सेकेंड पॉइंट आम देखा एम चर्म साधारणतः शुष्क चर्म कौन साधारणतः सॉरी चर्म पतला आर्द्र और ग्रंथि रही माने ग्रंथि ग्रंथि थो आम आम चर्म अच्छी स्वेद ग्रंथि से आम झाड़ आम जो बॉडी झाड़ क्रिएट कर माने झाड़ सृष्टि कर बॉडी झाड़ सृष्टि कर देख पतला माने चर्म तांगर पूरा आमर देख एटा गोटे थीन अच्छी आमर चर्मटा माने जो मोटा अच्छी बट तांकर ए देख आमर ए चर्मटा देखिया एटा चर्मटा पूरा पतला से टाइप रो तांकर चर्म मध्य पतला आर्द्र ओ ग्रंथि माने ग्रंथि ग्रंथि होगी थियो द्वितीय पॉइंट हम कोन देखिया एमान चर्म पतला आर्द्र और ग्रंथि रही था माने दो एमाने जो आम एम्फिबिया श्रेणी जो प्राणी मान अच्छा एमाने निजर निश्वास प्रश्वास चर्म द्वारा करथांती एमाने कहा द्वारा निश्वास प्रश्वास करथांती उडे वन मार्क क्वेश्चन बाय मोस्ट इंपोर्टेंट मान दो से पचारियो कि एम्फिबिया श्रेणी प्राणी माने कहा द्वारा श्वासक्रिया संपादन करती आमे तार उत्तर लिखा चर्म एमाने चर्म द्वारा चर्म द्वारा श्वासक्रिया संपादन करथांती माने दो आ गोटे पॉइंट एटा हिला एमानंकर ए जो अंत कंकाल अछि माने एंडोस्केलेटन माने भितर जो कंकाल रही मनुष्य शरीर भितर जेमति कंकाल अछि सेमति समस्त शरीर भितर कंकाल रही भितर गोटे तार बॉडी की स्ट्रक्चर शेप दवा कंकाल रही से जो अंत कंकाल अछि से गुडी अस्थि माने बोनी टाइप रो माने अस्थि पूरा परिपूर्ण लागि एमानंक अस्थिर एमानंकर अंत कंकाल अस्थिर अटे एमाने माने दो जो एम्फिबिया श्रेणी प्राणी मान अच्छा साधारणतः एमाने होचनी मांसाशी प्राय 90% मांसाशी 99 तो 99% मांसाशी होचनी एमाने शिकार करिया समय देखिपार एमानकर उदाहरण तो आम शेष पढ़ा एमाने जीभ को लौटाई माने जीभ को उल्टा टाइप रो ए टाइप रो उल्टा टाइप रो करिकी रखी उल्टा टाइप करी बाहर करती ओ
से बाहर करके पार्टी भितर आनती शिकार को एमाने साधारणतः मांसाची कौन एमाने साधारणतः मांसाची एमाने जीभ शिकार करने एमानकर जीभ उल्टा करती माने उल्टा करी बाहर बाहर माने आमर हाथरा इन दिया कथा इन कर बाहर को जाकि इन धरिक आनी पार्टी पूरा देवे माने जो बेंग ए टाइप एम्फीबिया प्राणी माने तुम उदाहरण गोटे देदेली बेंग बेंग केमती एमती था तार पार्टीटा उल्टा है से टाइप तार शिकार को जीभ द्वारा तार भितर आऊँगी आमची ना ना से टाइप जीभ द्वारा खाद्य शिकार करती एमान दांत गुड़िक सब एका प्रकार और ये एका प्रकार दांत गुड़ी होमोडंट बोली कहुए कौन कहुए होमोडंट एमानकर दांत होमोडंट बोली कहुए कौन कहुए पिला माने होमोडंट होमोडंट कहुए है कि कौन आम देख पुणी आहरी 5टा पॉइंट अच्छी आम 6टा पॉइंट पढ़ले पुणी आहरी 5टा पॉइंट अच्छी है प्रथम पॉइंट देख जल स्थल माने बास कर उभयचर प्राणी कहुए द्वितीय पॉइंट है चर्म पतला आद्र और गंभीर एमाने चर्म द्वारा श्वासक्रिया संपादन करते तृतीय पॉइंट एमान अंतकंकाल अस्थिर अटे माने बनी टाइप रोटे अस्थिर परिपूर्ण एमाने साधारणतः मांसाशी अटंती एमाने कौन साधारणतः मांसाशी एमर जो खाद्य शिकार करने जीभ को लेउटाई खाद्य को ग्रहण करता निज पार्टी को आनी ए टाइप और एमानकर दांत गुड़िक एका प्रकार रही होमोडंट कहुए तो आम आउ बाकी पॉइंट देखा ए प्रथम आम पढ़े 6टा पॉइंट विषय आहरी यार 5टा पॉइंट अच्छी देखो आउटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आउटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एमाने जेतेबेले लार्भा अवस्था था से माने चर्म द्वारा श्वासक्रिया करती जेतेबेले माने पूर्णांग अवस्था परिणत होती से माने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया संपादन करती एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कारण गोटे माने देखो गोटे प्राणी एम्फीबिया कैटेगोरी प्राणी एमाने गोटे अवस्था गोटे प्रकार श्वासक्रिया करती अन्य अवस्था रूपांतरित है आउटे अवस्था आउटे प्रकार श्वासक्रिया संपादन करते आउटे अंग द्वारा देख प्रथम लार्भा अवस्था थिला बेले लार्भा अवस्था थिबा बेले एमाने सॉरी लार्भा अवस्था थिबा माने एमाने गाली द्वारा श्वासक्रिया करती श्वासक्रिया करती और एमाने जेतेबेले पूर्णांग अवस्था परिणत होते से माने फुसफुस द्वारा संपादन करते माने जो आमर श्वासक्रिया पूर्णांग अवस्था का द्वारा द्वारा श्वासक्रिया संपादन करते आउ गोटे पॉइंट है एमाने हृत्पिंड 3 कोठरी विशिष्ट देखो मनुष्य शरीर जो हार्ट अच्छी से 4 कोठरी विशिष्ट
किंतु एमाने जो एम्फीबिया कैटेगरी अच्छी एमानकर हृत्पिंड होची 3 कोठरी विशिष्ट एमानकर ए जो हृत्पिंड रही 3 कोठरी विशिष्ट मनुष्य मानकर 4 कोठरी विशिष्ट 3 कोठरी विशिष्ट 3 कोठरी विशिष्ट ओ एमाने ब्रुकक द्वारा निजर रेचन कार्य संपादन करछंती का द्वारा ब्रुकक द्वारा केउ माने एम्फीबिया श्रेणी प्राणी माने ब्रुकक द्वारा सेमानकर रेचन कार्य संपादन करछंती एडा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एमाने ब्रुकक द्वारा निजर रेचन कार्य संपादन करछंती देखो फर्स्ट टाइम पढ़ते 6टा पॉइंट ए पढ़ले 3टा पॉइंट 9टा पॉइंट हो गला तो समस्ते मन रख और ये पॉइंट गुड़िक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आम बहिरू माने बहिरू ही पॉइंट गुड़िक बाहर करी तुम मान भलसे बुझाई ट्राए करूँ तेणु आम चैनल डिजिटल ओडिशा एजुकेशन को सब फॉलो कर सब्सक्राइब कर और शेयर कर बहुल मात्रा शेयर करने द्वारा आम नुआ नुआ वीडियो गुड़िक प्रथम आप देख लास्ट पॉइंट रहा कौन ब्रुकक द्वारा एमाने रेचन कार्य संपादन करछंती एमानकर उदाहरण कौन उदाहरण तो फर्स्ट कहदेली बेंग पानी बेंग पानी बेंग एक द्वितीय रहा लुणी बेंग बेंग तृतीय रहा हाइला हाइला चतुर्थ रहा सालमंडेरा कौन सालमंडेरा देखो फर्स्ट आम पढ़ते 6टा पॉइंट एबे पढ़ले 4टा पॉइंट 10टा पॉइंट तो 10टा पॉइंट रे गोटे 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन गोटे माने कंप्लीट हो गला गोटे 5 मार्क आराम रे तमे पाई जीवो ए 10टा पॉइंट जदि तमे भल से बुझलो माने भल से पढ़लो तेणु सब बेले पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट वाइज पढ़ और आमर वीडियो जो शूट होमर जो यूट्यूब अपलोड हो पूरा थरोली देख माने गोटे सेकंड में मिस करियो माने गोटे पॉइंट मिस हो से पॉइंट आमर ये करना वीडियो तापर आम पढ़ा देख आम फर्स्ट पढ़ले एम्फीबिया विषय रे पूरा विस्तृत भाव में बुझे जेकोसी डाउट रहा तुम कमेंट सेक्शन में जनाओ से गुड़ आम पुनः डाउट तुम सॉल्व करने चेष्टा करूँ तो बर्तमान आम पढ़ा रेप्टेलिया विषय क्या विषय रेप्टेलिया विषय रेप्टेलिया एमाने रेप्टेलिया माने साधारणतः सरीसृप श्रेणी एमाने क्यों श्रेणी सरीसृप एमाने केतेक अछंती जो रेप्टेलिया श्रेणी अछंती केतेक एमाने केतेक जल रे वास करती और केतेक स्थल रे वास करती क्योंटी केतेक जल रे केतेक स्थल रे माने जल रे क्यों माने वास करती कुंभीर कईच स्थल रे क्यों माने वास करती झिटिपिटी साप एगुड़िक सब स्थल रे वास करती आउ जेतिक अछंती अन्य कैटेगोरी माने जो रेप्टेलिया ही स्थल माने जो जल रे वास करूछंती से माने होउछंती हमर जो कुंभीर कुंभीर जल रे रहउची कईच कईच जल रे रहउची से टाइप रो सब केतेक माने जो रेप्टेलिया डाको दुई भाग रे विभक्त होची माने उभयचर माने माने मध्य उभयचर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एडा पॉइंट होची माने मध्य उभयचर केतेक केतेक जल रे वास करती केते जल और केते स्थल वास करती है कि जल क्यों मैंने वास करती प्रथम कहली तुमको कईच कुंभीर और स्थल क्यों मैंने वास करती झिटिपिटी साप देख तापर आम पढ़ा एम पाद 5 आंगुठी विशिष्ट
आम देख हाथ में कि पादरे 5टा जमी आंगुठी अच्छी से 5टी आंगुठी अच्छी केतोटी आंगुठी 5टी आंगुठी मान पाद रे 5 पादरा हूँ 5 आंगुठी विशिष्ट और एमानकर शरीर पछपटे लांज थाए जी आम रेप्टेलिया कैटेगोरी प्राणी मान अच्छा शरीर पछपटे लांज थाए एमान शरीर पछपटे लांज थाए और एमाने एमानकर शरीर पछपटे लांज थाए सर माने जो 17 एमानकर शरीर पछपटे लांज थाए एमाने साधारणतः समस्ते प्राय मांसाशी अटंती रेप्टेलिया श्रेणी जी अच्छा प्राणी माने एमाने साधारणतः मांसाशी एमाने साधारणतः कौन मांसाशी एमाने निजर श्वासक्रिया फुसफुस द्वारा संपादित करते बेले और रेचन क्रिया वृक्क द्वारा संपादन करते द्वारा श्वासक्रिया फुसफुस द्वारा एमाने जो रेप्टेलिया श्रेणी प्राणी माने श्वासक्रिया फुसफुस द्वारा संपादन करती और रेचन क्रिया वृक्क द्वारा संपादन करती एमानकर चर्म चर्म साधारणतः शुष्क माने आमर शुष्क रही चर्म जो रही से गोटे शुष्क रही और ग्रंथि विहीन माने एम चर्म जमी आम चर्म अच्छी श्वेत ग्रंथि द्वारा आम चर्म माने जो झाड़ क्रिएट हो शरीर श्वेत ग्रंथि द्वारा झाड़ सृष्टि होती सेमती एम शरीर ग्रंथि किसी न ग्रंथि विहीन ये गोटे पॉइंट चर्म साधारणतः ग्रंथि विहीन शुष्क और ग्रंथि विहीन एमानकर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है साप झिटिपिटी साप झिटिपिटी एंडो कईच एम गोटे प्रमुख उदाहरण क्यों मानकर रेप्टेलिया श्रेणी प्राणी मान जो रही तो पाने आम भलसे पढ़ले रेप्टेलिया विषय से गोटे तो जस्ट ओभरलुक करदे आम केतेक जल स्थल बास करती और केतेक माने देख केतेक जल बास करती जल क्यों मैंने बास करती से कईच आम कुंभीर आ स्थल क्यों मैंने बास करती झिटिपिटी और साप है एम पाद 5 आंगुठी विशिष्ट केते आंगुठी 5 आंगुठी विशिष्ट एम शरीर पछपटे लांज थाए एम साधारणतः मांसाशी अटंती श्वासक्रिया एम श्वासक्रिया फुसफुस द्वारा और रेचन प्रक्रिया आम वृक्क द्वारा संपादित करथांती और एमानकर चर्म साधारणतः शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है एमाने
ମାନେ ଏମାନେ ଶରୀର ଯୋଉ ରହିଛି ଚର୍ମଜା ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥିବିହୀନ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସାପ, ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ, କଇଁଚ। ଆମେ ରେପ୍ଟେଲିଆ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ପଢିଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଏପ୍ସ ବିଷୟରେ। ଆଉଥରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଏପ୍ସ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ? ଏପ୍ସ। एप्स विषय पढ़ा। एमाने साधारणतः पक्षी बा विहंग को एप्स कहुए। क्या पक्षी पक्षी बा विहंग को एप्स कहुए। एमानकर जो पक्षी बा विहंग माने एप्स मानकर जो प्राणी प्राणी एप्स श्रेणी प्राणी मानकर आग गोड़ दुईटा डेणारे रूपांतरित होई सेमानकु उड़िबारे सहाय्य करे। कौन करिवारे? तो यार मेकानिजम टा भलसे बुझ। आग गोड़ माने जो येर कार पक्षी मानकर पक्षी बा विहंग मानकर आग गोड़ दुईटा डेणारे रूपांतरित होई सेमानकु उड़िबारे सहाय्य करे। कौन करिवारे सहाय्य करे? उड़िबारे। एमानकर आग गोड़ दुईटी ढेणारे रूपांतरित होई एमानकु उड़िबारे सहाय्य करे। के मानकु? पक्षी बा विहंग मानक। एमानकर शरीर रे खाद्य संचय पई एक स्थली थाए, सेगुडी को कहले गळ थळी। कोन? गळ थळी। खाद्य संग्रह पई एमानकर शरीर रे गोटे थळी थाए, से थळी को कोन कहले? गळ थळी। कोन? खाद्य संग्रह पई गळ थळी थाए। कौन थाए? गळ थळी। ओ पेषण पई पेषणी थाए। कौन? पेषणी। पेषण पई पेषणी थाए। एमानकर हृत्पिंड 4 कोठरी विशिष्ट। केते? 4 कोठरी विशिष्ट। हृत्पिंड केते? 4 कोठरी विशिष्ट। एमानकर उदाहरण कौन देखियो आमे? उदाहरण हला एमानकर कुकुड़ा, काऊ, पारा, बग, से माने जो माने जो पक्षी कैटेगरी रे अछथि से माने सब ए कैटेगरी माने एफ श्रेणी रे जाउछथि। काऊ, पारा, बग, पेंगुइन,
पेंगुइन इत्यादि एमाने सब जाउछन्ति केन कैटेगरी रे एप्स कैटेगरी रे वर्तमान आम पढ़िया एप्स विषय माने विस्तृत भाव में बुझिले वर्तमान आम पढ़िया मामालिया कैटेगरी माने मामालिया जो माने स्तन्यपायी प्राणी अछन्ति से विषय रे पढ़िया मामालिया कैटेगरी जो मैंने स्तन्यप्रायी प्राणी एम देख एम समस्ते होती कौन स्तन्यप्रायी प्राणी एम समस्ते पायी प्राणी कौन एम समस्ते स्तन्यपायी प्राणी और एम मस्तिष्क ज्ञानेन्द्रिय बहुत उन्नत धरण माने जी आम जो आम 6 नंबर कैटेगरी पढ़ुचे मामालिया जो बड़का 5टी रही से मस्तिष्क और ज्ञानेन्द्रिय अर्थ है सेंसिंग ऑर्गन माने जो सेंस करवा माने गोटे हठात मनोहर आम हाथ में मशा गोटे बसला आम सेंस कर से मशा अटैक करछे बाड़ौचे से टाइप सेंसिंग ऑर्गन मनुष्य शरीर जो मामालिया कैटेगरी प्राणी मान अच्छा सेंसिंग ऑर्गन बहुत उन्नत धरणर और मस्तिष्क बहुत उन्नत धरणर ये गोटे आउ पॉइंट मस्तिष्क और ज्ञानेन्द्रिय बहुत उन्नत धरण माने मोस्ट एडवांस टाइप एम शरीर लोमस माने देख शरीर लोम हो माने टाइप लोम हो कौन एम शरीर लोमस और एम साधारणतः छुआ जन्म करती कौन एम साधारणतः छुआ जन्म करती अन्य आम जो पांचटा कैटेगरी विषय पढ़ी पढ़ी आसिले से साधारणतः छुआ जन्म करती ना एम जो मामालिया श्रेणी प्राणी मान अच्छा एम साधारणतः छुआ जन्म करती एम शरीर लोमस लोमस और एमाने एमाने साधारणतः छुआ जन्म करती व्यतिक्रम माने व्यतिक्रम प्लाटियस माने प्लाटियस बोली गोटे मामालिया श्रेणी प्राणी अच्छी से छुआ जन्म करेनि से अंडा दिए एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही तुम मन किए मामालिया श्रेणी रे जाई मध्य अंडा दिए किए से गोटे होची प्लाटियस प्लाटियस गोटे प्रकार प्राणी सी मामालिया कैटेगरी जाउची बट सी अंडा दिए है कि एमानकर जो मामालिया श्रेणी प्राणी मान अच्छे एमानकर श्वासक्रिया श्वासक्रिया जो अंग रही श्वासक्रिया रक्त संचालन और रेचन तंत्र बहुत उन्नत धरण
श्वासक्रिया और रेचन तंत्र और एम रक्त संचालन अंग बहुत उन्नत धरण बहुत उन्नत धरण अर्थ है मोस्ट एडवांस टाइप माने एमानकठू उन्नत धरण वर्तमान पर्यंत कहार होना भविष्य में भी हो पारे बट वर्तमान पर्यंत कहार भी नहीं है कि उन्नत धरणर एम प्रमुख उदाहरण है प्रथम है आम मनीष मनीष होती माने मामालिया श्रेणी एक प्रमुख उदाहरण उदाहरण लिखा आम मनीष मनीष आमर बाघ गाई बाछुरी सॉरी गाई बिलेई कंगारू मूषा ए टाइप मनीष गोटे प्रमुख उदाहरण मनीष बाघ बिलेई और मूषा इत्यादि वर्तमान आम पढ़ले मामालिया श्रेणी बा स्तन्यपायी प्राणी विषय एमाने होउछथि गोटे मोस्ट एडवांस टाइप माने गोटे क्लास जहाँ प्राणी मान गोटे क्लास रही एमाने समस्ते स्तन्यपायी प्राणी अटंती एम मस्तिष्क और ज्ञानेन्द्रिय बहुत उन्नत धरणर एम शरीर लोमस और एमाने साधारणतः छुआ जन्म करती प्लाटियस प्लाटियस बोली गोटे स्तन्यपायी प्राणी रही जहाँ मामालिया श्रेणी जाऊँगी ताहा व्यतीत अन्य समस्त जी मामालिया श्रेणी प्राणी मान अच्छा समस्ते माने अंडा दिखती नहीं छुआ जन्म करती ओनली गोटे अच्छी प्लाटियस से मामालिया श्रेणी रही अंडा दिए है कि सेमानकर श्वासक्रिया जो अंग रही रेचन जो अंग रही रक्त संचालन जो अंग रही से गुड़िक बहुत उन्नत धरणर माने मोस्ट एडवांस टाइप एम प्रमुख उदाहरण है मनीष बाघ बिलेई मूषा इत्यादि वर्तमान आम पढ़ले मामालिया विषय वर्तमान आम जो पढ़ुले साइक्लोस्टोमाटा टू आरंभ कर मामालिया पर्यंत तुम मान से भितर जब कौन डाउट रहा जेकोसी डाउट रहा तुम कमेंट सेक्शन में जनाओ और आम से गुड़ी को डाउट क्लीयरिंग क्लास माध्यम समाधान करने चेष्टा करूँ वर्तमान आम पढ़ा विलुप्त जाति माने एगुड़ी तो माने जस्ट जानापी तुम जानापी कौन विलुप्त जाति लुप्त प्राय जाति और विलुप्त हो किसी माने रेयर प्रजाति जाक देख विलुप्त जातिर अर्थ कौन विलुप्त जाति हूँ जो मैंने 50 वर्ष रु अधिक वर्ष है पृथ्वी पृष्ठ रु अदृश्य हो जाती से विलुप्त जाति कह जाए और से मैंने आउ देखा जाऊना 50 वर्ष केते वर्ष विलुप्त जाति केते वर्षर 50 वर्ष वर्ष रु अधिक अधिक समय धरी जो मैंने अदृश्य होती कौटू धरा पृष्ठ पृथ्वी पृष्ठ से विलुप्त जाति बोली कहुए है कारण से माने परिवेश माने परिवेश जो परिवर्तन है माने जो आमर क्लाइमेट चेंज होची परिवेश चेंज होची केते जल केते खरा केते वर्षा हठात शीत हो टाइप परिवर्तन होची से परिवेश सहित जे खाप खुआई चलला से परिवेश तिष्टि पार तेणु वर्तमान जो मैंने विलुप्त होती से माने परिवेश सहित खाप खुआई चली पारे तेणु से माने विलुप्त जाति में परिगणित होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट गोटे पॉइंट है तुम समस्ते जानते हो डायनोसरस डायनोसरस है डायनोसरस गोटे प्रमुख विलुप्त जातिर प्रमुख उदाहरण
ମାନେ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ବହିଗତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଡାଇନୋସରସ୍ ବହିଗତ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ମୋ ଭାବନାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଡାଇନୋସରସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି। ମାନେ ସେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ରହିଛି। କାରଣ ତାର କ'ଣ, ସେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି, ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ବହିଗତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଆମର ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିର ଉଦାହରଣ ଭାରତୀୟ ଚିତାବାଘ। ଭାରତୀୟ ଚିତାବାଘ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। କ'ଣ ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆମର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଚିତାବାଘ। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଚିତାବାଘ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯୋଉ ବିଦେଶରୁ ଅଣା ହଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶରୁ ଅଣା ହେଇ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କରାହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରାହଉଛି। ବଟ୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଚିତାବାଘ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ, ଡୋଡୋ। ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ। ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ପଢିଥିବ। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହିରେ ଦେଇଛି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ। ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ, ମରିସସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ। ମରିସସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଆମର ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜାତି। ମାନେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜାତି, ଏମାନଙ୍କର ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ଏମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ଠାରୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। କ'ଣ ଏମାନେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜାତି ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲାଣି। ଏମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଓ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି ବା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା ବୃହତ୍କାୟ ପାଣ୍ଡା। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡା ଦେଖିଥିବା, ପାଣ୍ଡା, ସେଇ ପାଣ୍ଡା ବୃହତ୍କାୟ ପାଣ୍ଡା, ଏ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପାଣ୍ଡା ଥାଉଛି, ତମେ କାର୍ଟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ, କୁମ୍ଫୁ ପାଣ୍ଡା, ସେ ଟାଇପର କହୁଛି ମୁଁ। ପାଣ୍ଡା ସେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାର ଉଦାହରଣ, ବୃହତ୍ ପାଣ୍ଡା ଓ ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା। ଦୁଇ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା, ପାତାଳ ଗରୁଡ ଗଛ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ହେଲା କି। ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା। ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି? ସେଟା ଆମର ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଉଦ୍ୟାନରେ। କାଜିରଙ୍ଗା ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆମର ଏକ ଶିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠାରେ? କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କାଜିରଙ୍ଗାର, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଷ୍ଟାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜାତି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜାତି ରହିଛି ବହିରେ ଆମର ଦେଇଛି, କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ। କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ ଏକ ମାଂସାହାରୀ ଗଛ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢି ଆସିଛେ। କମଣ୍ଡଳୁ ଗଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଯୋଉ ତୃଣଭୋଜୀ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସ୍ୱଭୋଜୀ। କିନ୍ତୁ କମଣ୍ଡଳୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗଛ, ସେ ମାଂସାଶୀ। ମାନେ ସେ ପତ୍ରଟା ତାର ଏଇ ଟାଇପର ଥିବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିକି ଏଇଟା ମନୋହର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ବସିଲା, ମନୋହର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, କୋଉଟା ଏଇଟା ମନୋହର ଗୋଟେ ଆସି ମନୋହର ଏଇ ଟାଇପର ଥିଲା, ଏଇଟା ମନୋହର ଆସି ପକ୍ଷୀଟା ରହିଲା, ମନୋହର ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରହିଲା, ଏ ଟାଇପର ତାର ପତ୍ରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସେ ପତ୍ରରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଟାଇପର ଥିବ, ସେ ପତ୍ରଟା ଏ ଟାଇପର ବନ୍ଦ ହେଇକି ତାକୁ ଖାଇଦବ, ହେଲା କି। ସେ ପତଙ୍ଗ ବା ସେ ମୁଣା ଟାଇପର ଥିବ, ଏ ଟାଇପର ରହିଲେ ମୁଣା ଗୋଟେ ରହିବ, ଏ ଟାଇପର ସେ କଭରିଂ ହେଇକି ରହିଯିବ। କ'ଣ ହବ? କଭରିଂ ହେଇକି ରହିଯିବ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବା ପତଙ୍ଗ ବା କୀଟ ବସିଥିବ ସେ ମରିଯିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି ବିଷୟରେ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଶିକାର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି କୁହାଯାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ଶିକାର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତିରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତିରେ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତିରେ କେତେକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଓ ସରୀସୃପ ଓ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତିରେ ଆମର ବହିରେ କିଛି ତମ ବହିରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇନି କଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତିର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ 3ଟି ଉଦାହରଣ ବାହାର କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡଲଫିନ୍, ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍, ଓ ଆମର ଯୋଉ ଏସିଆନ୍ ହାତୀ, ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହାତୀ, ଓ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଜାତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୀଳଗାଈ, ମାନେ ଯୋଉ ନୀଳଗାଈ ସାଧାରଣତଃ ତମାନେ କିଏ ଦେଖିନଥିବ ନୀଳଗାଈ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି। ନୀଳଗାଈ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡଲଫିନ୍ ଆଉ ଏସିଆନ୍ ହାତୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତମ ବହିରେ ମେନସନ୍ ହେଇନି ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ବିଷୟରେ। ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି କଣ? ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ଏଇ ଜାତିର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି। ଏମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆସାମର ମାନସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଙ୍ଗୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। କଣ ଏହାର ଉଦାହରଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମର୍କଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ ଜଣାଥିବା ଜାତି। କମ୍ ଜଣାଥିବା ଜାତି ହେଉଛି ଇନସଫିସିଏନ୍ସି ନନ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଏହି ଜାତିର ଜୀବମାନେ ମାନବ ସମାଜ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଅପହଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ରାଶି ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ ଜଣାଥିବା ଜାତି ଇନସଫିସିଏନ୍ସି ନନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାତିର ଜୀବମାନେ ମଣିଷ ସମାଜ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ଏବଂ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ ସେହି ଅପହଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ହେଲା କି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରାଜି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଜୈବ ବିବିଧତାର ପ୍ରଥମ ପାଠ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ବହିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଏ ପାଠ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଓ ତାପରେ ଆମେ ବହିରେ ଯେତିକି ପୁସ୍ତକଗତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଫଲି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ। ହେଲା କି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।